جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا. جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. اب دا بال از ان دیئر کورٹ. سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی. کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے. یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا. وقت گزاری کے لیے سیز فائر قبول نہیں. گیند افغان طالبان کے کورٹ میں ہے. افغانستان دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کام کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. دہشت گرد فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. حالیہ واقعات سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا تھی. موہمند میں 50 خوارج جہنم واصل، کئی زخمی. دیگر علاقوں میں 34 دہشت گرد ہلاک ہوئے. شمالی وزیرستان میں 18 خوارج مارے گئے. جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ISPR کے مطابق کارروائیاں 13 سے 15 اکتوبر تک کی گئیں. کامیاب آپریشنز پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین. بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم. پاک افغان کشیدگی کے باعث افغان بارڈر بند. کراچی پورٹ سے کلیئرنس روک دی گئی. چمن بارڈر پر بھی تجارت اور آمد و رفت معطل. کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کی گنجائش ختم ہو گئی. افغان تاجروں کا تجارتی گزرگاہوں کی بندش پر طالبان حکومت کے خلاف شدید رد عمل. چین کا پاک افغان جنگ بندی کا خیر مقدم. تعلقات میں بہتری کے لیے مدد کی پیشکش کر دی. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دیر پا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا تنازع کے پائیدار خاتمے کا مطالبہ. شہریوں کی خاطر لڑائی ختم کریں. افغانستان میں فتنہ الخارج کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے. فتنہ الخارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں. فتنہ الخارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دہشت گرد گروہوں کو کھلی چھٹی کا انکشاف. دہشت گرد گروہ وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نژاد جنگجوؤں سے ہے. قوم کا فخر اور سرمایہ افتخار. قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی. صدر آصف علی زرداری کی راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد. شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی والدہ، فیملی اور بچوں سے ملاقات کی. سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے. شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. مذاکرات ان سے ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے. ان سے پوچھیں ان کی کاز فلسطین تھی یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے. کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ ایک پاکستان کی اعلیٰ دینی اور سیاسی شخصیت خود بیچ میں آئی، انہوں نے ان کو بھی ڈچ کیا، انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ڈچ کیا. ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے گن پوائنٹ پہ گاڑیاں لے رہے ہیں اور اپنے جلوس میں شامل کر رہے ہیں. سوائے TLP کے عہدیداران کے کسی بھی مدرسہ یا علماء کرام کے اوپر کوئی ایکشن کی نہ اجازت ہے نہ ہوگی. مجھے صرف ایک چیز بتا دیں، یہ پچھلے 2-3 ماہ سے کیا ایسی چیز آ گئی ہے پاکستان میں کہ کہیں نہ کہیں سے ہر 15 دن بعد ایک پروٹیسٹ بڑا ہونا ضروری ہے؟ کسی کے اوپر بھی تشدد نہیں ہوا، صرف ان لوگوں پہ ہوا جو پرتشدد تھے، جنہوں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جنہوں نے سیدھی گولیاں ماری. اس مسلح جتھے کے ساتھ اتنی آسانی نہیں تھی جنہوں نے گھروں میں اور مساجد کے میناروں پہ پوزیشنیں لی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے. لبیک یا رسول اللہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ ہم سارے جو چاروں کھڑے ہوئے ہم سب کے لیے. یہ نعرہ ان کا نہیں ہے، یہ نعرہ ہم سب کا ہے. وہ سب کے سب ہماری طرح کل جمعے کو اظہار تشکر منائیں گے.
मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालसी के लिए किरदार अदा किया, TLP ने उन्हें भी धोखा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अता तारड़ और सरदार यूसुफ के हमराह मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिर्फ पुरतशद्दुद, मुसल्लह और गोलियां चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ऊंचे मकामात पर पोजीशन लेकर फायरिंग की जाती रही। TLP ओहदेदारों के सिवा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक का नुकसान, रियासती रेट कायम करने के लिए बड़े फैसले, इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला, तमाम जायदादें जब्त, अकाउंट्स बंद किए जाएंगे, क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास, मुलव्विस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस पर पाबंदी आयद, गैर कानूनी असलहा पर 14 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बानी के एक्स अकाउंट पर मजहबी जमात के 400 कारकुनों की लाशों का इश्तियाल अंगेज झूठा बयान। पंजाब हुकूमत का बानी PTI पर पिका एक्ट लगाने का फैसला। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज, एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी, अवामी मकामात पर 4 या ज़ायद अफराद इकट्ठा नहीं होंगे। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत पर एक्शन होगा। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। शरपसंदों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला, कल कोई हड़ताल नहीं, मार्केटें बाजार खुलेंगे। शरपसंदों, बलवाइयों और आहनी हाथों से इनसे निपटा जाएगा। शहरियों की जानो माल अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज, पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 3400 हो गई। लाहौर से 326 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदही, पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 11 मुजाहिरीन को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दिया गया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद में मजहबी जमात के दफातर और मसाजिद सील, मजहबी जमात के कारकुनों के घरों और दफातर पर छापे। पुलिस ने दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी दफ्तर, रूरल एरिया, मरी रोड, पठाल चौक भी सील। हाफिजाबाद में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, 30 नामजद और 30 नामालूम शामिल। बर्फ पिघल गई, गिले शिकवे दूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ ताल्लुकात को हम एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आला मैं हूं तो एडवाइजरी काउंसिल भी मैं ही बनाऊंगा। सुहेला आफरीदी का पार्टी क़यादत को दो टोक पैगाम। कहा अदालतों से इंसाफ न मिले तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। बानी से मुलाकात के लिए आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। हम तमाम तरीके आजमा चुके, एक बार फिर आजमाएंगे। वफाक और सूबे के इख्तलाफ का नुकसान आवाम को नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गज़ा अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर की मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क्रेडिट सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सफ़ीर का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के जंगे रुकवाने के बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो।
भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर का कहना है खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मुलाकात। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरत अंदाज में बहाली के काम की तारीफ की। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेलवे मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत ने हाई स्पीड रेल मंसूबे के लिए MOU की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर अमल दरामद और निगरानी पाकिस्तान रेलवे करेगा। जॉइंट कमेटी तश्कील देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को शिकस्त। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारूनुल रशीद कामयाब। हारूनुल रशीद ने लाहौर से 629 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर में 1000 से ज़ायद वकला ने वोट कास्ट किया। हारूनुल रशीद क्वेटा, मुल्तान, सखर, स्वात और बनू से भी कामयाब। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद हट धर्म इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमारतों के मलबे से मजीद 25 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा में शहादतें 68,000 के करीब पहुँच गईं। यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताख़ीर पर इसराइल का इमदाद में कटौती का ऐलान। गजा में इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ कर दी। रफा क्रॉसिंग भी बंद। सिंध में डेंगू तेजी से फैलने लगा। 15 रोज में 175 केस सामने आ गए। कराची में 85, हैदराबाद में 48, मीरपुर खास में 37 और सखर में 5 केस सामने आए। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो का कहना है कि साल के आगाज से अब तक 819 केस रिपोर्ट हुए। कराची समेत तमाम डिविजन्स में इंसदादे डेंगू मुहिम तेज कर दी। लाहौर की फ़ज़ा जहरीली और आलूदा हो गई। एयर क्वालिटी खतरनाक हदों को छूने लगी। लाहौर मुल्क का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 270 तक जा पहुंचा। आलूदगी मजीद बढ़ने का अंदेशा। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत कर दी।